Okay, am I audible? Is the screen visible? Yes, everyone. Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Is the screen visible? Yes, Yes, sir. sir. But a small one. Small one. Okay, I think it is visible now, right? Sir. All right. So now I'm starting with the session, and discussion right now is about chemotherapy 2. And in chemotherapy 2, I'll be talking about anti-malarial drugs. I'll be talking about anti-malarial drugs and anti-tubercular drug, anti-leprosy, antifungal, antiviral, anti-cancer. So we'll be talking about these drugs and so anti-malarial agent. Malaria is caused by four species of Plasmodium. The name is Falciparum, Vivax, Malari, and Ovale. Majority of the cases, the responsible is P. vivax is mainly responsible for majority of the cases. The other two, P. ovale and P. malaria, they are very mild in nature. If I talk about falciparum, then the patient has fever with rigors every third day and termed as tertian. Now, first drug here is chloroquine. It is an anti-malarial agent used for suppression and clinical cure of malaria. It is an excellent erythrocytic seizure. It does not prevent relapse. The problem is it does not prevent relapse. And it is also used in rheumatoid arthritis. And this drug is comparatively safe if used in pregnancy. This can be safely used in pregnancy. Other diseases like infectious mononucleosis, DLE, GRDSS, in these the drug is given. Then we have primaquine. This is highly effective against gametocytes and exoerythrocytic stage. Primaquine is the another drug, so we will keep on remembering the drugs which are used. So number one is chloroquine, then we have primaquine, then we have mefloquine, and quinine is also used. I hope everyone knows about quinine. It is a natural alkaloid obtained from cinchona bark.
इसको हम सेरिब्रल फेल्सीपेरम मलेरिया के में यूज करते हैं। इट इज अ मल्टी ड्रग, और जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्ट्रेन है हम उनमें भी यूज करते हैं। Then we have proguanil. Then we have proguanil. This is also another drug. Then pyrimethamine sulfonamide combination. This is basically used in falciparum. ये हम बहुत commonly falciparum में use करते हैं. And this combination is indicated in chloroquine resistant malaria and prophylaxis also. ट्रीटमेंट ऑफ टोक्सोप्लाज्मोसिस में भी हम इसको यूज करते हैं। देन वी हैव सम आर्टेमिस्टिन डेरिवेटिव्स जिसमें आर्टिस्यूनेट, आर्टी ईथर, आर्टीमीथर, इन सब को हम यूज कर सकते हैं। दीज ड्रग्स आर नोन एज आर्टिमिस्टिन डेरिवेटिव्स। ये इनको हम बोलते हैं आर्टिमिस्टिन डेरिवेटिव्स। So this was a short about malaria drugs. Then we have anti-tubercular and anti-leprosy agent. If I talk about anti-tubercular drugs, we have isoniazid. If I talk about anti-tubercular drugs, tubercular drugs are divided into two. The first line drugs, which we give for the first time. If we see any kind of resistance developed, then we move to second line drug. The first line drugs are isoniazid, rifampicin, streptomycin. Earlier this was, but recently from last 1 2 year, Government of India has removed streptomycin as first line. Then we have pyrazinamide. Then we have pyrazinamide. We have ethambutol. So technically these drugs are first line drugs, and if I talk about the most active drug used in treatment of tuberculosis is isoniazid. और एक बात आपको मैं और बताऊं जो उसमें नहीं लिखी है, वो ये है कि हम आइसोनियाजाइड को टीबी की प्रिवेंशन के लिए भी देते हैं। सपोज हमें लग रहा है कि ये पर्सन हाई रिस्क है, इसको टीबी होने के चांसेस हैं, हम उसको पहले से ही आइसोनियाजाइड दे देते हैं ताकि उसकी टीबी की प्रिवेंशन हो जाए, राइट। उसके बाद हमारे पास हैं कुछ सेकेंड लाइन ड्रग्स जिनमें हमारे पास आते हैं इथियोनामाइड, साइक्लोसेरिन, कैप्रियोमाइसिन, कैनामाइसिन, rifabutin. These drugs are second line drugs. And if I talk about ethionamide, this is of moderate efficacy. This drug produces many side effects, and therefore it is used in its use is limited to patient in whom resistance to better tolerated drug is present. Then we have cyclosarin. ये जो cyclosarin है, this is for the multi drug tuberculosis, दूसरी ड्रग्स के साथ भी। कैप्रियोमाइसिन जो है, इट इज अ पेप्टाइड प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर, एंटीबायोटिक आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइसिस कैप्रियोलस. It is second line antimicrobacterial drug which exhibits activity against human strains of Mycobacterium tuberculosis. Then हमने डिस्कस किया कैनामाइसिन एंड rifabutin. Now I'm coming to एंटी लेप्रेसी एजेंट. अगर एंटी लेप्रेसी एजेंट की बात करें तो तीन चीजों का नाम सबसे ऊपर रहेगा: डैप्सोन, रिफैम्पिसिन, क्लोफाजिमिन एंड क्लोफाजिमिन. ये तीन ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं लेप्रेसी के लिए. Dapsone is chemically related to sulfonamide, have been used effectively in long-term treatment of leprosy. उसके बाद हमारे पास रिफैम्पिसिन भी है और क्लोफाजमिन भी है. देन इथियोनामाइड, ये इट इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग यूज्ड एज एन ऑल्टरनेट टू क्लोफाजमिन इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रेसी. लेप्रेसी के ट्रीटमेंट में क्लोफाजमिन को हटा के इथियोनामाइड को हम यूज कर सकते हैं. अदर एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं, दैट इज फ्लोरोक्विनोल्स, ओफ्लोक्सासिन, पेफ्लोसिन, स्पारफ्लोक्सासिन, नाइट्रोफेरेंटाइन, क्विनोलॉल्स. ये सारी चीजें जो हैं हम लोग यूज कर सकते हैं.
नाउ आई एम कमिंग टू एंटी फंगल एजेंट। अगर मैं एंटी फंगल एजेंट की बात करूं तो सबसे पहले एम्फोटेरिसिन बी। आप सबने सुना होगा कोविड के समय में म्यूकोर माइकोसिस के बारे में, जिसे हम ब्लैक फंगस के नाम से जानते थे। एम्फोटेरिसिन बी उस बीमारी में दी जाती थी एंड इट इज एंटी फंगल एंटीबायोटिक। ये हम स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडस के जो हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिस नोडस है, ये एंटीबायोटिक उससे ऑब्टेन की जाती है। एंड एम्फोटेरिसिन बी हैज अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी फंगल एक्टिविटी। इसका मतलब ये होता है कि ये वाइडली चीजों के लिए यूज की जा सकती है, बहुत अलग अलग बीमारियों के लिए भी, नाना प्रकार की फंगल इन्फेक्शंस के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, अगली हमारे पास है निस्टैटिन। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज निस्टैटिन। Nystatin is obtained from Streptomyces norsei. It is similar एंटीफंगल एक्शन, इसका सिमिलर सा एंटीफंगल एक्शन है एम्फोटेरिसिन के जैसा, बट ये बहुत टॉक्सिक है, ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक ड्रग है। एंड नेक्स्ट आई एम कमिंग टू द ग्रीसियोफल्विन। ये तो पेनिसिलिन ग्रीसियोफल्वियम से हम इसको ऑब्टेन करते हैं। एंड इफ आई टॉक अबाउट, अगर मैं इसकी यहाँ पे बात करूँ, तो ये सुपरफिशियल इन्फेक्शन जैसे एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, इन सब के लिए यूज होता है। देन फ्लूसाइटोसिन है एक, ये क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मन्स के अगेंस्ट, कैंडिडा स्ट्रेन्स के अगेंस्ट काम करता है। देन वी हैव क्लोट्रिमाजोल, कीटोकोनाजोल, टर्बिनाफिन। कीटोकोनाजोल आप सबने सुना होगा, एंटी फंगल ड्रग है ये, एंड बहुत कॉमनली इसको डैंड्रफ में भी यूज करते हैं, बिकॉज डैंड्रफ जो है वो एक फंगल इन्फेक्शन है। क्लोट्राइमाजोल एक टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए है, इसको हम जेनाइटल रीजन में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं जैसे कैंडिडा और ये सारे इन्फेक्शंस जब हो जाते हैं तो उस केस के अंदर हम इसको इस्तेमाल करते हैं ना। अब आगे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कुछ मिसलेनियस एजेंट्स हैं, जैसे हमारे पास है टोलनाफ्टेट। ये टीनिया क्रूरिस और ट्रीनिया कॉर्पोरिस के लिए टॉपिकल ड्रग है और ये क्रीम और सॉल्यूशंस की तरह यूज की जाती है। Then coming to antiviral agents, then I'm coming to antiviral agents. अगर मैं एंटीवायरल एजेंट्स की बात करूं तो ए साइक्लोविर की बात करना मैं ज़्यादा ज़रूरी समझूंगा सबसे पहले, बिकॉज ए साइक्लोविर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। और इसका जो मेन यूज मैं आपको बताऊं, जो आपने सबने सुना होगा जिसको हम चिकन पॉक्स बोलते हैं, और हिंदी या फिर देसी लैंग्वेज में हम उसे बोल देते हैं माता, है ना। कुछ कुछ जगहों पे इसको ऐसा बोला जाता है कि माता निकल आई है, बहुत लोकल लेवल पे ऐसा बोला जाता है। आपने सुनी है ये शब्द कभी चिकन पॉक्स के बारे में? जल्दी बताओ मुझे फटाफट, सुना है आपने ये कभी चिकन पॉक्स के बारे में? सुना है, क्या सुना यस है। बोल, सर। है ना। तो चिकन पॉक्स के लिए वैसे कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूं, कोई भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है चिकन पॉक्स के लिए। लेकिन अगर चिकन पॉक्स किसी ऐसे केस में हो गया जहां पे बीमारी बिगड़ने की जरूरत है, चिकन पॉक्स बहुत सेल्फ लिमिटिंग है, खुद ही पेशेंट अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ऐसे केस की कि जहां मुझे लग रहा है चिकन पॉक्स बिगड़ सकता है, निमोनिया कर सकता है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, इस केस के अंदर हम ए साइक्लोविर देना पसंद करते हैं। या फिर शिंगल्स का आपने सुना हो, शिंगल्स पूरे जो शिंगल्स होता है दैट इज रीएक्टिवेशन ऑफ वेरिसेला ओनली, राइट। सो शिंगल्स के केस में हम एसाइक्लोविर देते हैं। उसके बाद जाइडोविडिन, ये आपने सुना है, ये बहुत पोटेंट एचआईवी ड्रग है। लैमिविडिन, हम मोस्ट कॉमनली इसको एचआईवी के, एचआईवी से ज्यादा लैमिविडिन हम पसंद करते हैं यूज करना। हेपेटाइटिस बी में भी यूज होती है, एचआईवी में भी यूज होती है। देन वी हैव नेविरापिन, इफावेरेंस, ये सारी एचआईवी के अगेंस्ट ड्रग है। इंडिनाविर, राइटोनाविर। नाउ कमिंग टू अमेंटाडिन, जो एक ड्रग है ये इन्फ्लुएंजा के अगेंस्ट यूज की जाती है। देन वी हैव रिबाविरिन भी है, एंड वी हैव सम इंटरफेरॉन्स आल्सो। नाउ आई एम कमिंग टू एंटी कैंसर एजेंट्स। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारे पास है एंटी कैंसर एजेंट्स। These
कैंसर इज अ डिजीज जिसमें सेल जो है वो बहुत तेज तेज से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम कुछ ऐसी ड्रग्स देते हैं जिनसे उनकी ग्रोथ रुक जाए। इन ड्रग्स की क्लासिफिकेशन है एल्काइलेटिंग एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट्स, साइटोटॉक्सिक, विंका एल्केलॉइड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट एल्काइलेटिंग एजेंट्स, अगर मैं एल्काइलेटिंग एजेंट की बात करूं तो ये जो एजेंट्स हैं दे रिएक्ट विद न्यूक्लिक एसिड और ये डीएनए की सिंथेसिस को ही बंद कर देते हैं। ये क्या करते हैं, डीएनए के सिंथेसिस को बंद कर देते हैं। तो एल्काइलेटिंग एजेंट के कुछ साइटोटॉक्सिक एक्शन है और ये क्या करता है, डैमेज कर देता है न्यूक्लियाई ऑफ ग्रोइंग एंड मल्टीप्लाइंग सेल्स। They have got immunosuppressant action also and suppresses antibody production. They also have radiomimetic actions. इसके अंदर हमारे पास है साइक्लोफॉस्फामाइड, क्लोम्बाब्यूसिल एंड लोम्यूस्टीन। ये सारी ड्रग्स जो हैं ये इसके अंदर आती हैं। एंड साइक्लोफॉस्फामाइड एक प्रो ड्रग है, ये बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है अपनी एक्टिव फॉर्म में, जो कि एल्डोफॉस्फामाइड है एंड फॉस्फोरामाइड मस्त है। और ये ल्यूकीमियाज में और हॉजकिन डिजीज इन सब में यूज की जाती है। देन वी हैव एंटी मेटाबोलाइट्स जिसमें मीथोट्रेक्सेट, फ्लोरोयूरिसिल, मेटकैप्टोप्यूरिन, citrabine. All of these drugs are anti-metabolite drugs and they are analog to normal DNA component or coenzyme involved in nucleic acid synthesis. They get incorporated or completely inhibit utilization of normal substrate to dysfunctional nucleic acid molecule. एंड उसके बाद हमारे पास है कुछ साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज है। दीज ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड दे हैव एंटी ट्यूमर एक्टिविटी। They act by binding to double stranded DNA, interfering with its function, जैसे actinomycin D, doxorubicin, bleomycin and bleomycin। ये तीन ड्रग्स जो हमारे पास हैं ये है साइटोटॉक्सिक एंटीबॉडीज। देन वी हैव विंका एल्कलॉइड्स जिसमें हमारे पास आता है विंका एल्कलॉइड जो है ये प्लांट विंका रोजिया से आता है। इसमें हमारे पास है विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन एंड विनोरेल्बिन। देन हमारे पास है टेक्सान्स, इसमें पेक्ली टेक्सल एंड डोसी टेक्सल ड्रग्स ये हमें यूज होती हैं। ये भी हमें एक पेड़ से, एक ट्री से मिलता है, वेस्टर्न यू ट्री। इट इज इंडिकेटेड इन मेटास्टेटिक ओवेरियन एंड ब्रेस्ट कैंसर। देन टोपोइसोमरेज 1 इनहिबिटर, इसमें आरिनोटिकान और टोपोटिकान ये दो ड्रग्स काम आती हैं। देन वी हैव हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट जैसे फॉस्फेस्टिरॉल एक सिंथेटिक नॉन स्टेरॉयडल एस्ट्रोजन है, टेमोक्सीफेन, ये सारी ड्रग्स। देन सम मिसलेनियस एजेंट्स जो हमारे पास है हाइड्रोक्सी यूरिया, प्रोकार्बामाजिन, एल एस्पर्जिनेस एंड सिस्प्लाटिन। Then, if I talk about, we have some immunosuppressants also, जैसे azathioprine and cyclosporin। जो साइक्लोस्पोरिन ड्रग है मैं आपको बताऊं, ये ड्रग ना जब भी आपको, आपने सुना होगा कि ट्रांसप्लांट हम लोग करते हैं, कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, उस केस के अंदर साइक्लोस्पोरिन दिया जाता है ताकि ग्राफ्ट का रिजेक्शन ना हो जाए, ताकि ग्राफ्ट का रिजेक्शन ना हो। Now, so we are done with this anti-cancer topic also. Now I'm going to the next chapter, endocrine system। देखो एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है। एंडोक्राइन का मतलब होता है हमारी सिस्टम, हमारी बॉडी का वो सिस्टम जो हार्मोन से रिलेटेड है। अब आपको पता है हार्मोन्स का हमारी बॉडी में बहुत इफेक्ट है। अगर हार्मोन ज्यादा हो जाए बॉडी में तो भी दिक्कत है, अगर हार्मोन कम हो जाए बॉडी में तो भी दिक्कत है। तो इसीलिए हर हार्मोन का हमारे पास एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट है। एगोनिस्ट उस हार्मोन को बढ़ाएगा, एंटागोनिस्ट अगर हार्मोन बॉडी में किसी कारण से बढ़ गया है तो एंटागोनिस्ट क्या करेगा, उसको कंट्रोल करेगा। अब सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे पिट्यूटरी हार्मोन। देखो पिट्यूटरी
Okay, what are hormones? Hormones are substances that are secreted by endocrine glands. And what are endocrine glands? These are those glands that secrete their content directly into the blood and extracellular fluid. These substances can either have an effect on adjoining cell or can be transported through blood to act on various systems or specialized cell in the body and to maintain homeostasis. Now coming to anterior pituitary hormones, जिसमें growth hormone, thyroid stimulating hormone, adenocorticotropic hormone, follicle stimulating hormone, luteinizing hormone, lactogenic hormone या फिर prolactin, ये सारे हॉर्मोन्स हमारा इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होने वाले हैं। सबसे पहला है ग्रोथ हार्मोन। ये ग्रोथ हार्मोन एक सिंगल स्ट्रेट चेन पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर है। ग्रोथ हार्मोन प्रमोट करता है प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म, इट इंक्रीजेस न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। ये डिक्रीज करता है नाइट्रोजन की एक्सक्रीशन को यूरिन में। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ टिश्यू, इट कॉजेज मोबिलाइजेशन ऑफ पेरिफेरल फैट डिपो टू लीवर। नाउ अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाए, हाइपोसिक्रीशन मतलब कम सिक्रीशन, अगर हाइपोसिक्रीशन हो जाए तो ड्वार्फिज्म, बचपन में अगर हो तो, अगर एडल्ट लाइफ में हो जाए तो सीमंड्स डिजीज, और अगर हाइपर सिक्रीशन चाइल्डहुड में हो जाए तो जाइजेंटिज्म, और अगर अडल्ट लाइफ में हाइपर सिक्रीशन मतलब ज्यादा सिक्रीशन हो जाए तो एक्रोमेगेली। देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। Then we have glucocorticoids, mineralocorticoid, and sex hormone. They are controlled by ACTH. Now, hyposecretion of hormone from adrenal cortex, it leads to Addison disease, which is characterized by loss of appetite, muscular weakness, loss of weight due to loss of water, hypoglycemia. Hypersecretion from adrenal cortex leads to a disease known as Cushing syndrome. Then we have follicle stimulating hormone. In females, the target organs are ovaries, where it increases the number and size. Then luteinizing hormone, in female, it is responsible for complete development of ovarian follicles to secretory stage and secretion of estrogen. It promotes the final maturation of ovarian follicle and ovulation and formation of corpus luteum. Now coming to prolactin. It is a single chain peptide hormone. It has a direct effect upon the breast immediately after delivery of baby and in conjunction with other hormones stimulate the breast to secrete milk. It also stimulates the proliferation of glandular elements of mammary gland during pregnancy and help in complete development of breast. Then posterior lobe of pituitary, we have ADH, जिसको हम vasopressin बोलते हैं. Then we have oxytocin, which is synthesized in hypothalamus and transported down the axon in the posterior lobe of pituitary. Now, thyroid hormone,
और एंटी थायराइड एजेंट। जो थायराइड हार्मोन है ये दो तरीके से एग्जिस्ट करता है, T4 थायरॉक्सिन एंड T3। एक थर्ड हार्मोन भी सिक्रीट होता है थायराइड से, दैट इज नोन एज कैल्सीटोनिन। दिस इज secreted from intestinal cell in physiologically different and is responsible for regulation of calcium metabolism. Thyroid hormones exert their effect by binding to nuclear receptor in target organ. The therapeutic use of thyroid hormones are infant hypothyroidism, adult hypothyroidism। अडल्ट हाइपोथायरायडिज्म को हम बोलते हैं मिक्सडीमा। ये एक इमरजेंसी है जिसमें लियोथायरोनिन can be used and maintained by thyroxine. In the treatment of non-toxic goiter and papillary thyroid carcinoma, it is often responsive to thyroid stimulating hormone. नाउ अगर थायराइड ज्यादा हो जाए तो एंटी थायराइड एजेंट कौन कौन से हैं? अभी तो हमने बात की अगर थायराइड कम हो तो, अब एंटी थायराइड, अगर थायराइड ज्यादा हाइपर सिक्रीट करने लग जाए तो ड्रग्स जो इनहिबिट करेंगी हार्मोन का सिंथेसिस, प्रोपाइल थायोरेसिल एंड मेथिमाजोल, ये दो ड्रग्स हैं जो यूज करते हैं हम लोग। ड्रग्स विच इनहिबिट आयोडाइड ट्रैपिंग, जिसमें थायोसाइनेट, पर क्लोरेट एंड पर टेक्निटेट को हम यूज करते हैं। ड्रग्स विच इनहिबिट हार्मोन रिलीज, जो हार्मोन के रिलीज को इनहिबिट करता है, ऐसी भी ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं। एंड ड्रग विच डिस्ट्रॉय थायराइड ग्लैंड टिश्यू, जैसे I-123 एंड I-125, ये रेडियो आइसोटोप है, ये थायराइड की टिश्यू को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। देन वी हैव इंसुलिन एंड अदर ओरल एजेंट्स। अगर इंसुलिन की कमी होगी तो डायबिटीज की बीमारी होगी। एंड इंसुलिन जो है एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है जो सिक्रीट होता है बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहन से। जो ये वाला इंसुलिन का जो हार्मोन है, इट इज formed from proteolysis of proinsulin, uh, which are interconnected by disulfide bond. Insulin act by binding to insulin receptor on cell membrane. In diabetes mellitus, there is either insulin deficiency or insulin resistance in peripheral tissue. नाउ इंसुलिन हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल है? कन्वेंशनल प्रिपरेशन है जैसे रेगुलर इंसुलिन, इंसुलिन जिंक प्रिपरेशन, सेमी लेंटे, लेंटे, एनपीएच। एंड कुछ हमारे पास नई प्योरीफाइड इंसुलिन की प्रिपरेशन भी हैं जिसे हम रेगुलर इंसुलिन बोलते हैं एंड सिंगल पीक इंसुलिन, ये सारी इंसुलिन। देन वी हैव ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स जिसमें हमारे पास है सल्फोनाइल यूरे, बाइगुआनाइड, मेग्लिटिनाइड एंड थाइएजोलिलेंडियोन्स। सल्फोनाइल यूरिएज की अगर मैं बात करूं तो क्लोरप्रोमाइड, टोलब्यूटामाइड, क्लिपिजाइड एंड ग्लेमेपेराइड, ये सारी ड्रग सल्फोनाइल यूरिएज की तरह हैं। इसका काम है ये ग्लूकोज को बनाना बंद कर देता है, और आपको पता है ग्लाइकोजन ब्रेक होकर बॉडी को ग्लूकोज देता है, तो ये ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन भी रोक देता है। मतलब नया ग्लूकोज भी बनना रोक देगा और जो पुराना ग्लाइकोजन पड़ा है उसका भी ब्रेक डाउन रोक देगा। देन वी हैव बाइगुआनाइड्स। बाइगुआनाइड्स का मेरे पास यहाँ पे एग्जांपल जो है दैट इज मेटफॉर्मिन। जो मेटफॉर्मिन है, दे लोअर द ब्लड शुगर लेवल इन ऑल टाइप ऑफ डायबिटीज, but like sulfonylurea, they do not lower the blood sugar level in normal individual. They act by increasing peripheral anaerobic glycolysis, इनहिबिट करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन को गट में। मेटफॉर्मिन इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। देन वी हैव मेग्लिनिटिनाइड्स जिसमें रीपाग्लिनाइड एंड नेटिग्लिनाइड हमारे पास अवेलेबल है। एंड रोजीग्लिटा एंड पायोग्लिटाजोन एंड रोजीग्लिटाजोन, ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस को कम करता है। देन कमिंग टू हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, एंड इसमें सबसे पहला एग्जांपल है कंबाइंड पिल्स का। इसमें कंबाइंड पिल्स में एस्ट्रोजन भी होता है, प्रोजेस्टेरोन भी होता है, 21 दिन तक ये टैबलेट लेना होता है लगातार, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम द 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल।
देन वी हैव फेज्ड पिल्स, ये है तो कंबाइंड पिल ही पर इसको फेजिक मैनर में देते हैं. एग्जाम्पल, द एस्ट्रोजन लेवल इज केप्ट कांस्टेंट बट द प्रोजेस्टेरोन अमाउंट इज लो इन अर्ली फेज and it increases in the subsequent phase of menstrual cycle, 5th day to 10th day menstrual cycle, 11th to 15th इन्होंने आपको डेज बताया हुआ है. एंड धीरे धीरे जैसे जैसे डेज बढ़ रहे हैं हम प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा रहे हैं. दिस इज फेजिक पिल. मिनी पिल ये प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल है क्योंकि सिंथेटिक एस्ट्रोजन के साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसीलिए हम मिनी पिल्स को भी यूज कर सकते हैं. पोस्ट कोइटल आपने सुना भी होगा, इसे हम आई पिल या इमरजेंसी पिल के नाम से जानते हैं. एंड दिस इज पोस्ट कोइटल कॉन्ट्रासेप्शन, जिसे हम आफ्टर पिल या मॉर्निंग आफ्टर पिल भी बोलते हैं. अगर इसमें 0.75 mg का आप लीवोनॉर्जेस्टेरोल किसी पेशेंट को दे रहे हैं तो दैट इज टेकन ट्वाइस, 2 बार लेना होता है 12 घंटे के गैप में. एंड अगर आप उसको 1.5 mg प्रिस्क्राइब कर रहे हैं देन एक टैबलेट ही सफिशिएंट है. देन वी हैव सम इंजेक्टेबल फॉर्मुलेशंस जिसमें आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक हेल्थ के लिए DMPA, जिसका नाम हम सरकार ने रखा है अंतरा. ये एक इंजेक्शन है 150 mg का है और हर 3 महीने में इसे रिपीट करना होता है. देन वी हैव सेंटक्रोमान, सहेली के नाम से ये ड्रग पहले आती थी. अब इस ड्रग का नाम पहले ये ड्रग सहेली के नाम से आती थी, अब इसका इन्होंने नाम चेंज किया है. एंड ये एक नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है. देन सम मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, नाम है गोसीपॉल बट नॉट यूज्ड वेरी मच. कुछ मेल कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी हैं मार्केट में. नाउ कमिंग टू सम एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स. एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो हैं जैसे नैंड्रोलोन, स्टेनोजोलोल एंड मेस्टिरोलोन, ये कुछ एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स हैं. दे हैव डिफरेंट साइड इफेक्ट्स so they are not used much. Okay, now coming to next chapter. The next chapter is poisoning. देखिए पॉइजनिंग का एक बहुत जनरल सा ट्रीटमेंट अगर मैं आपको बताऊं, पॉइजनिंग का एक ट्रीटमेंट सबसे जनरल ट्रीटमेंट ये है, जो पॉइजन एब्जॉर्ब हुआ है कोशिश करो वो बाहर आ जाए, गैस्ट्रिक लवाज करके एंड पॉइजन से दूर करके. और दूसरा, जो पॉइजन गया है उसका कोई एंटीडोट दो. बेसिक 2 ट्रीटमेंट पॉइजन के केस में यूज होते हैं. ना टाइप्स एंड ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग. सबसे पहले जनरल ट्रीटमेंट की अगर मैं बात करूं तो आपको वेंटिलेशन प्रोवाइड करना है पेशेंट को, उसका कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन आपने चेक करना है, अगर कोई हाइपोथर्मिया प्रेजेंट है तो वो चेक करना है, अगर कन्वर्जन्स आ रहे हैं तो आपने वो करेक्ट करना है, फ्लूइड और पेन सब जनरल ट्रीटमेंट देना है. अब सबसे पहले है प्रिवेंशन ऑफ एब्जॉर्प्शन, कि पॉइजन एब्जॉर्ब ना हो. अगर मैं बात करूं पॉइजन एब्जॉर्ब ना हो तो उस केस के अंदर सबसे पहला है प्रिवेंशन ऑफ पॉइजन एब्जॉर्प्शन, जिसमें गैस्ट्रिक लवाज है सबसे इंपॉर्टेंट. गैस्ट्रिक लवाज का क्या मतलब होता है, हम दिस इज यूजफुल फॉर 6 आवर्स. अगर मान लो किसी ने पॉइजन को इंजेस्ट किया है, खा लिया है, तो उस केस के अंदर हम लोग गैस्ट्रिक लवाज करते हैं. हम ट्यूब डालते हैं स्टमक के अंदर और कोशिश करते हैं कि जितना भी कंटेंट है उसे हम बाहर निकाल लें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन उसकी ना हो. एंड इट इज़ inappropriate to employ gastric lavage unless the lungs can be protected. Gastric lavage is contraindicated if corrosive or caustic substance, अगर कोई एसिड ऐसी चीज है जिसमें अब गैस्ट्रिक लवाज करने से दिक्कत हो. नाउ एक्सेलरेटिंग पॉइजन एलिमिनेशन, जितना पॉइजन अगर बॉडी में गया भी है तो कोशिश करेंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा बॉडी से बाहर निकले. तो इस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, एल्कलाइन डायूरेसिस, की उसका यूरिन के थ्रू ये जो पॉइजन है वो बाहर निकल जाएगा. एंड ये इफेक्टिव है सैलिसाइलेट्स के लिए. और repeated dose of activated charcoal administered by oral route have been shown to enhance the non-renal elimination of carbamazine and salicylate. Substance which from masses
जैसे एस्पिरिन, आयरन, लिथियम, सब्सटेंस विच रिमेन इन द स्टमक फॉर अ लॉन्ग टाइम, जैसे बारबिटल, एस्पिरिन। अगर हमें इन चीज़ों की नॉलेज है तो हम एक्टिवेटेड चारकोल का भी यूज़ कर पाएंगे। अब स्पेसिफिक पॉइजनिंग में की अगर मैं बात करूं तो ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, सबसे पहले गैस्ट्रिक लवाश, फिर एक एयरवे मेंटेन करके रखेंगे हम, को स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से एब्जॉर्ब होता है ये, तो कोशिश करेंगे उनको धोएंगे। देन सपोर्टिव थेरेपी मेंटेन करेंगे, ब्लड प्रेशर, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, डिहाइड्रेशन। देन एंटीडॉट इसका है एट्रोपिन, इस केस में हम देंगे एट्रोपिन। देन वी हैव क्रॉनिक अल्कोहलिज्म। जो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म है, इस केस के द ट्रीटमेंट इज इनिशिएटेड विद सिंगल डोज व्हिच इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड टू अ मेंटेनेंस डोज, एंड द ड्रग ड्राइसल्फायरम इंटरफेयर करता है ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड फॉर्म ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ अल्कोहल। नाउ नाउ मिथेनॉल पॉइजनिंग, इस केस में वही गैस्ट्रिक लवाज, एक्टिवेटेड चारकोल, हॉस्पिटलाइजेशन, आईवी ओरल इथेनाइल अल्कोहल। देखो, मिथेनॉल पॉइजनिंग एक ऐसी पॉइजनिंग है जिसमें हम इथाइल अल्कोहल देंगे, अल्कोहल पिला दो मिथेनॉल पॉइजनिंग के अंदर, क्योंकि वो उसकी एब्जॉर्प्शन को कम करेगा, जो एंजाइम अवेलेबल है ना वो बिजी हो जाएगा इथाइल अल्कोहल को मेटाबोलाइज कराने में, राइट। अब कुछ स्पेसिफिक एंटीडोट्स हैं जो काम करते हैं, जैसे फैट, ऑयल, दीज आर द मैकेनिकल एंटीडोट्स, ये एब्जॉर्प्शन ही नहीं होने देते। कुछ केमिकल एंटीडोट्स हैं जो दे रिएक्ट विद पॉइजन टू फॉर्म हार्मलेस इनसोल्यूबल फॉर्म, जैसे एसिड्स आर न्यूट्रलाइज्ड बाय एल्कली। देन वी हैव सिस्टमिक एंटीडोट्स, जिसमें मॉर्फिन के केस में कैफीन एंड एट्रोपिन पाइलोकार्ब के यूज में। डाइसल्फायरम हमने बात की, एक नॉन टॉक्सिक है जो ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक अल्कोहल में यूज होता है। देन वी हैव लिकोवोरिन एंड लिकोवोरिन प्रेलिडॉक्सिन, ये ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग के केस में यूज होता है। वी हैव निकोटीन, जो निकोटीन इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ निकोटीन डिपेंडेंस एंड एज एन एड टू स्टॉप स्मोकिंग। देन वी हैव ब्यूप्रोपियोन। फिर हमारे पास है एंटी स्नेक वेनम। ये जो एंटी वेनम है, इम्यूनोग्लोबुलिन है प्यूरिफाइड फ्रॉम द सीरम और प्लाज्मा ऑफ अ हॉर्स or sheep that has been immunized with venoms of one or more species of snake. Antivenom should be given by intravenous route. Adrenaline should always be drawn up in readiness before antivenom is administered for any possible anaphylactic reasons. Now, common poison and their antidote, arsenic का है dimercaprol, bal dipencylamine, then cyanide, oxygen, इथाइलिन ग्लाइकोल, मिथेनॉल का इथेनॉल, ओपियोइड्स का नैलोक्सोन, ऑर्गेनोफॉस्फोरस का एट्रोपिन, आयरन डेस्फेरोक्सामीन, बीटा ब्लॉकर एट्रोपिन, डाइजॉक्सिन का डाइजॉक्सिक स्पेसिफिक एंटीबॉडी फ्रैगमेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में हम देंगे ऑक्सीजन। सो ऑल ऑफ दीज आर द एंटीडोट्स ऑफ वेरियस पॉइजन्स और ड्रग which is having more dose. Then we have chelating agents. ये chelating agent क्या करते हैं, ये एंटीडोट होते हैं हेवी मेटल के, ये स्टेबल होते हैं, नॉन टॉक्सिक होते हैं और ये इजीली एक्सक्रीट हो जाते हैं। They promote dissociation of bound metal from tissue enzyme and other functional macromolecules, जैसे डाइमरकेप्रॉल, डिपेनिसिलामीन, desferoxamine. These all are chelating agents for various diseases. Now, coming to the next, drug interaction. अब देखिए, drug interaction is an important chapter. In drug interaction, we get to know about the various absorption, distribution, metabolism, and excretion. If I talk about pharmacokinetic interactions, the drug may interact with another drug at any point during their absorption, distribution, metabolism, and excretion.
Drug interactions involving absorption. Important drug interactions include antacids, which contain calcium, magnesium, or aluminium that interfere with absorption of tetracycline by forming a chelate with the metal. Carbonate prevent absorption of iron. Cholestyramine interfere with absorption of certain drugs like warfarin, thyroxine and digitalis. यहाँ इन्होंने बताया है आपको वेरियस जो चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे एंटासिड टेट्रासाइक्लिन के साथ, एंटासिन बिस हाइड्रोक्सी क्यूरोमीन के साथ, कोलेस्टायरामिन वॉरफेरिन के साथ। सो इन्होंने ये सारी ड्रग्स के साथ अफेक्ट किया हुआ जो कि एक चिलेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है ड्रग्स के साथ कंपाउंड, तो उसकी ड्रग इंटरेक्शन बताइए। उसके बाद कुछ ऐसी चीजें हैं जो गैस्ट्रिक पीएच को ऑल्टर कर देती हैं, जैसे एंटासिड गैस्ट्रिक पीएच को ऑल्टर कर देगा तो सिमेटिडिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। सिमेटिडिन गैस्ट्रिक पीएच को अल्टर करेगा जिसकी वजह से टेट्रासाइक्लिन एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। एंड सिमिलरली कुछ ऐसी हैं जो गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ा देती हैं, जैसे मेट्रोक्लोप्रामाइड। एंड इन केस ऑफ डाइजॉक्सिन, डाइजॉक्सिन एब्जॉर्ब नहीं होगा बिकॉज ऑफ इंक्रीज मोटिलिटी। कुछ हैं जो डिक्रीज कर देंगी मोटिलिटी, उसकी वजह से डिक्रीज एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। एंड कुछ इंटरेक्शन है बिकॉज ऑफ ऑल्टरेशन ऑफ गट, इसकी वजह से इंक्रीज एब्जॉर्प्शन देखा जाएगा लिडोकेन का, प्रोपेनोलोल का एंड विरापामिल एंड imipramine. Now, drug interaction involving distribution. After absorption in blood, पहले था during absorption, अब now distribution. After absorption into blood, many drugs are bound to plasma proteins, the portion of drug which is being transported in the bound form in inactive and only free part of molecule that diffuse into the tissue produce their effect. The most important drug interaction caused by displacement of plasma protein occur in क्यूमरामिन एंटीकोआगुलेंट्स। तो इन्होंने कुछ ये ड्रग्स बताई हैं जो अब एब्जॉर्ब हो गई हैं और अब किसी और ड्रग की आने की वजह से वो ब्लड में रिप्लेस हो जाएगी। ये इन्होंने एग्जांपल दिए हैं, जैसे डाइजीपाम, हेपारिन, फेनिटोइन, टोल्बिटामिड एंड एनसेड। अब कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म इंटरैक्ट करेंगी, जैसे सर्टेन ड्रग्स इंड्यूस द हिपेटिक माइक्रोसोमल एंजाइम। ये जो ड्रग्स हैं ये सर्टेन हिपेटोसोमल एंजाइम्स से इनकी मेटाबॉलिज्म होती है। अब ये क्या करते हैं, एंजाइम को इंड्यूस कर देते हैं या इनहिबिट कर देते हैं। अगर एंजाइम को इंड्यूस कर देंगे तो मेटाबॉलिज्म फटाफट होगा, अगर एंजाइम को यहाँ आप देखेंगे इनहिबिट कर देंगे तो एंजाइम को बंद हो गया, मतलब ड्रग की मेटाबॉलिज्म डिले हो जाएगी या ड्रग मेटाबोलाइज नहीं होगी। अब कुछ ड्रग्स हैं जो एक्सक्रीशन के दौरान उनका इंटरेक्शन होता है। The tubular secretion of penicillin is inhibited by probenecid so that the blood concentration and its half-life is prolonged. Now, pharmacodynamic interaction है, pharmacodynamic interaction takes place at the site of drug action. अब पहले absorption में interaction हो रहा था, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहा था, फिर मेटाबॉलिज्म में हो रहा था एंजाइम को इंड्यूस करके या फिर उसको इनहिबिट करके। अब ड्रग के एक्शन के जो जहां पे साइट ऑफ एक्शन है यहां पे कुछ गड़बड़ होगी, जैसे एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म का मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट एक्ट करना, सिनर्जिज्म एक दूसरे के साथ एक्ट करना। Drug which alter potassium content may have effect in therapeutic effect of cardiac glycoside, which is are enhanced by potassium depletion. कुछ diuretics हैं, कुछ salicylates हैं। Some clinically important drug interaction जो है वो है carbenoxolone, ये amyloride और spironolactone के साथ interact करता है inhibition of ulcer healing के लिए। So they have given these various example of drugs which are interacted and decrease or increase or antagonized by other drugs. So this is the table given here, various examples of the drug interaction.
Now, coming to the miscellaneous drugs, the very important topic. And in this miscellaneous drugs, we are going to talk about antiseptic and disinfectants. देखिए एंटीसेप्टिक क्या है? अगर मेरे हाथ पे कोई बैक्टीरिया लगा है और मैं उसे क्लीन करूंगा, एंटीसेप्टिक। अगर मेरी टेबल पे कोई बैक्टीरिया है और मुझे उसको किल करना है, दैट इज डिसइंफेक्टेंट। तो आपने सुना होगा फ्लोर डिसइंफेक्टेंट्स, मतलब ना मोपिंग के दौरान, घर में साफ सफाई के दौरान फ्लोर डिसइंफेक्टेंट मतलब वो फ्लोर को साफ करेगा। एंटीसेप्टिक जो हम हाथ में यूज करते हैं जब चोट लग जाए, डेटॉल लगाते हैं, दैट इज एंटीसेप्टिक। कुछ हमारे पास फिनॉल डेरिवेटिव्स हैं, जैसे कार्बोलिक एसिड हो गया, मिथाइल फिनॉल हो गया, क्रिसोल। क्रिसोल इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसइंफेक्टेंट। देन हमारे पास है क्लोरेक्सो क्लोरऑक्सीलिनोन। ये डेटॉल जो है, इसका केमिकल नेम है, एंड सर्जिकल एंटीसेप्सिस में इसको हम यूज करते हैं। फिर KMNO4 इज अ वेरी पोटेंट एंटीसेप्टिक। इसका यूज है गार्गल्स के दौरान, कुछ कैविटीज और यूरेथ्रा और वूंड्स को क्लीन करने के लिए। इसका डिसइंफेक्टेंट है, हम इसको पानी को डिसइंफेक्ट करते हैं। ना, इसको हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज नहीं करते KMNO4 को, क्योंकि ये प्रमोट करता है रस्टिंग को। रस्टिंग मतलब जंग लगाता है। देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट, एक एंटीसेप्टिक की तरह है। ये रिमूव करता है ईयर की वैक्स को, और कॉस्मेटिक प्रिपरेशन और गार्गल्स के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। बेंजाइल पेरोक्साइड, ये एक्नी के केस में हम इसको यूज करते हैं। बेंजाइल पेरोक्साइड लगाया जाता है एक्नी पे, ताकि वो उसकी एंटीसेप्सिस हो। आपको पता है एक्नी बैक्टीरिया की वजह से होता है। देन हैलोजन है, यूज एज डिसइंफेक्टेंट, जैसे क्लोरीन हो गया। आयोडीन है, आयोडीन को हम यूज करते हैं। मैंडल पेंट यूज इन सोर थ्रोट होता है। आयोडेक्स है, राइट। देन वी हैव आइडोफोर्स, पोवियोडीन आयोडीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे हॉस्पिटल्स में यूज होता है। देन क्लोरीनेटेड लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, एंड वी हैव बाइगुआनाइड्स। क्लोरहेक्सिडिन को भी बहुत इंपॉर्टेंट यूज किया जाता है, क्लोरहेक्सिडिन। देन सेट्रीमाइड, इसका 20% सोल्यूशन है, इसे हम एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज करते हैं। देन सेट्रीमाइड के जैसा ही है एक सिटाइल पायरिडीनियम, इसे माउथ वॉश और लोजेंजेस की तरह यूज किया जाता है। देन वी हैव सम एसिड्स लाइक बोरिक एसिड, एंड कुछ मेटेलिक सॉल्ट्स हैं मरकरी के। अमोनिएटेड मरकरी है, सिल्वर कंपाउंड है, सिल्वर नाइट्रेट, सल्फर सल्फाइड, सल्फर डाइजीन। ये बर्न के पेशेंट में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमनली यूज होता है ये बर्न के पेशेंट में। जिंक सल्फेट्स हैं, इन्हें आई वॉश की तरह यूज किया जाता है। कुछ डाई है, जेंशियल वॉयलेट, ब्रिलियंट ग्रीन, इन सब डाइज को हम यूज करते हैं अल्सर्स और वुंड्स के लिए। देन नाइट्रोफुराजोन, ये बर्न और स्किन ग्राफ्टिंग के केस में इसका 2% क्रीम या ऑइंटमेंट या पाउडर यूज किया जाता है। अल्कोहल्स यूज किए जाते हैं, कुछ सोप्स यूज किए जाते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर यूज एज एंटीसेप्टिक। नाउ आई एम कमिंग टू विटामिन। देखिए विटामिन दो तरीके का है, विटामिन फैट सोल्यूबल है और वाटर सोल्यूबल है। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ फैट सोल्यूबल? ADEK। व्हाट आर द एग्जांपल ऑफ वाटर सोल्यूबल? विटामिन बी एंड सी। अब विटामिन पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि विटामिन की डेफिशिएंसी कुछ डिजीजेस करती है। जैसे विटामिन ए की डेफिशिएंसी करेगी नाइट ब्लाइंडनेस। कंजक्टाइवल डिजीरोसिस का मतलब है कंजक्टाइवा जो है वो ड्राई हो गया है, ग्रोथ की रिटार्डेशन, ड्राई एंड रफ स्किन हो जाएगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी रिकेट्स करती है। विटामिन ई की डेफिशिएंसी एक्सोनल डिजनरेशन करती है। विटामिन के की डेफिशिएंसी, विटामिन के बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? विटामिन के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा कोई भी कहीं पे भी ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग के क्लॉट बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन B1 की डेफिशिएंसी बेरी बेरी कर देती है, वर्निक्स एनकेफेलोपैथी करती है। विटामिन B2 की एंगलोस्टोमेटाइटिस। विटामिन B3 पेलेग्रा। B5 एंड क्लिनिकली डेफिशिएंसी इज नॉट नोन, B5 से क्या हो रहा है एज सच नहीं पता। B6 पेरिफेरल न्यूराइटिस करती है। एंड आइसोनियाजाइड जो टीबी की ड्रग है उसके साथ B6 का डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। इसीलिए हम जो पेशेंट आइसोनियाजाइड ले रहा है उसको B6 देते ही देते हैं।
विटामिन B12 मेगलोब्लास्टिक अनीमिया करेगा, विटामिन सी स्कर्वी करेगा। एंड नाउ कमिंग टू विटामिन ए, देखो विटामिन ए ना मेनली प्लांट और एनिमल फूड से मिलता है। एनिमल फूड की अगर मैं बात करूं तो जैसे फिश, बटर, एग, इन सब से मिलेगा। प्लांट फूड की अगर मैं बात करूं तो येलो एंड ग्रीन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे कैरेट्स एंड पंपकिन, पपाया, मैंगो, ये सारे रिच सोर्स है। अच्छा, फिश लीवर ऑयल जो है वो रिचेस्ट सोर्स है। हेलीबर्ट या कोड लीवर ऑयल सबसे ज्यादा इसका सोर्स है। विटामिन डी, विटामिन डी एक्चुअली ना हमें प्लांट से नहीं मिलता, या तो एनिमल सोर्स से मिलेगा या फिर सनलाइट में बैठने से हमारा विटामिन डी का लेवल बढ़ता है। ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसकी डेफिशिएंसी रिकेट्स करती है बच्चों में और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। देन विटामिन ई, ये एक एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। ये इट प्रिवेंट्स oxidation of coenzyme Q and inhibition of generation of peroxidation product from unsaturated fatty acid. So इसे हम प्री मेच्योर इन्फेंट में देते हैं जिन्हें हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एक्सपोज किया जाता है। देन विटामिन बी विन, थायमिन की डेफिशिएंसी से बेरी बेरी, हमने ऑलरेडी पढ़ा इस बात को। विटामिन टू राइबोफ्लेविन, इट इज फिजियोलॉजिकली इसका एक फंक्शन है कि फ्लेविन mononucleotide and flavin adenine dinucleotide, it is indicated in atherosclerosis as an adjuvant to hypertension, diabetes and obesity. Vitamin B3, niacin, vitamin B5, calcium pentothenate, B6 pyridoxine, ये सब विटामिन का हम डिजीजेस डेफिशिएंसी से क्या होंगी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Folic acid is it plays a vital role in intracellular reaction conversion of serine to glycine, and folic acid जो है it is indicated in folic acid deficiency, जो मेगलोब्लास्टिक अनीमिया है, अल्कोहलिज्म है, या फिर न्यूट्रिशनल अनीमिया इन प्रेगनेंसी है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी स्कर्वी करती है, डेंटल केरीज भी हो जाती है, उसमें गम की ब्लीडिंग हो जाती है। जो हमारे सिट्रस फ्रूट्स हैं जैसे कि उन सब में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। कैल्शियम इज मोस्ट अबंडेंट, कैल्शियम इज मोस्ट अबंडेंट इन नाउ सम ट्रेस एलिमेंट्स जैसे कि निकल, क्रोमियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम एंड सेलेनियम। So this was all about our discussion, and this table is very important. This is very important. You must learn this table, all vitamins and their deficiencies. So we are done with our syllabus, and whatever syllabus we were targeting till unit 17, we are done with that. If you have any doubt, please ask. Okay, I am waiting for another 1 or 2 minutes. If you have doubts, please ask. Sir, is there any simple way to remember the names of the drugs? देखो ड्रग्स का ना एक जितना रिवाइज करेंगे हम उतना बेटर हमें याद होगा। एंड शुरू में तो पढ़ के थोड़ा सा आपको लगेगा कि डिफिकल्ट है, पर आप अपने कुछ निमोनिक्स की तरह से याद कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट ड्रग्स जो हैं जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, अगर आप उनको बार बार याद करेंगे याद हो जाएगा। Okay, any other doubt? All right, then I'm signing off. Right, I'm signing off. Thank you so much for your time. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir.